India to reconsider and withdraw the following three ordinances and propose Electricity Amendment Bill 220 forthwith. The Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Ordinance of 220. The Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance Farmers Services Ordinance 220 and the Essential Commodities Amendment Ordinance of 20. Even though the concerns and sentiments of the House were conveyed to the Prime Minister through three letters which I addressed to the Prime Minister, पहला मैं चिट्ठी लिखी जुलाई जून के विच कि ये साडे व्यूज ने ये नहीं होना चाहिए ऑर्डिनेंस विड्रॉ करो जुलाई में हाउस की सिटिंग तो बाद मैं हाउस के व्यूज उन्होंने दसे और तीसरी और जुलाई जो सितंबर में मैं एक और चिट्ठी लिखी उन्होंने कि आज तुम नहीं कर रहे कि बड़ा हालात अच्छे नहीं हो और देश के विच through letter number so and so, Chief Minister of Punjab and Chief Minister of Punjab, I wrote to him. The Government of India converted these ordinances to acts and notified the same as follows. फिर उन्होंने अपने तीन बिल बनाए. These three legislations, along with proposed Electricity Amendment Bill 220, are clearly against the interests of the farmers and landless workers. And time-tested agricultural market system established not only in Punjab but also in the original Green Revolution areas of Punjab, Haryana and Western UP. Clearly, the Government of India has enacted legislation and not farm legislation, as the Constitution will show mention. I will speak when I will speak, mention them. These are also against the Constitution of India in 14, list 2, which comprises agriculture as a subject of the state. These legislations are direct attack and act of subterfuge to encroach upon the function and the power of the state inside the country's constitution. In the associate background, the Assembly sustained to unanimously reject these three legislations and the proposed Electricity Amendment Bill 220. It once again urges upon the Government of India to not only to annul these legislations, but also promulgate a fresh ordinance making the procurement of food grains on the minimum support price a statutory right of the farmers and continue with the procurement by Government of India through the FCI and other such agencies. ये मैं सिर्फ एक रेजोल्यूशन रखना चाहूँगा फॉर डिस्कशन एट एनी टाइम. आपने हम किया है कि मैं बिल पेश करा मैं इनू पेश कराता मैं ओके. सरकारी मता प्रस्ताव पेश किया गया कि राज की विधान सभा भारत सरकार को हुणे जहे घड़े कथित खेती कानून बारे किसानां दीयां चिंतावां दे हल नूं लै के अपनाए कठोर ते बेतरक वतीरे प्रति डूंगा खेद प्रगट करती है. विधान सभा ने मिति 28 अगस्त 2020 नूं एक मते राही भारत सरकार नूं जोर दे के कहा सी कि वो निम्नलिखित आर्डीनेंसां अते प्रस्तावित बिजली सोध बिल 2020 नूं मुड़ विचार के तुरंत वापस लवे. द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020 एंड एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 भावें कि पंजाब विधान सभा के सदन दीयां चिंतावां अते जज्बातां तो भारत के प्रधानमंत्री जी नूं मुख मंत्री पंजाब वालों उन्होंने पत्र नंबर CMO कांफी 2020/635 मिति 14 सितंबर 2020 राही जानू कराया गया सी. फिर भी भारत सरकार ने उपरोक्त आर्डीनेंसां नूं कानूनां विच तब्दील करके हेठ अनुसार अधिसूचित कर दिता. The Farmers Produce Trade and Commerce Act 2020 24 सितंबर 2020, the Farmer Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020 24 सितंबर 2020 and the Essential Commodities Amendment Act 2020 26 सितंबर 2020 प्रस्तावित बिजली शोध बिल 2020 समेत ये तिन्ने कानून
ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ, ਦਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਬਲਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਐਂਟਰੀ 14 ਲਿਸਟ 2 ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਲਾਵੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। स्पीकर साहब, एक कदम तो ये गल चल रही है, मेरा ख्याल कई साल हो गए हैं जिस तरीके ये डिस्कशन चल रही है। ये बिल बने दैट वी स्टार्ट विद शांतक पहला था साडी गवर्नमेंट ने दिल्ली स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट बनाया विच इज हियर, और स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट बीजेपी ने अपने मैनीफेस्टो में भी पाई सी कि असं जब आवेंगे असं इंप्लीमेंट करेंगे। फिर जब आ गए फिर इन्होंने की और फिर उन्होंने अपना शांता कमेटी की रिपोर्ट भी बना दी, रिपोर्ट बना दी है। आई जस्ट वांट टू मेंशन हियर कि ये चीज़ा ना शांता कमेटी रिपोर्ट हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर मेरा ख्याल कई साल हो गए हैं। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट ये 2006 फाइनल रिपोर्ट में आई थी। एंड समिंग अप इज देखिए इन्होंने कि इकनॉमिक्स उन्होंने कहा कि जेडे अपने खर्चे खुर्चे ने बढ़ रहे हैं, इनपुट प्राइस होएगा, पर्टिकुलरली डीजल प्राइस बढ़ रहे हैं, और ये 2006 की गल है। वाइल आउटपुट प्राइसेस आर नॉट कीपिंग अप द राइज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाली निकली गल कर रहे हैं कि वो भी ना होनी चाहिए। The minimum support price should not only continue but should be listed with the wholesale price index। और उन्होंने फिर किया मार्केट रिफॉर्म से भी इन्होंने कुछ जिक्र किया। नवी 2006 की गल। फिर उस तो बाद इन्होंने कहा था बीजेपी ने असं अपने मैनीफेस्टो पावांगे, जो आ गए फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये लागू नहीं कर सकते। लेकिन असी शांता कमेटी शांता कुमार जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने दिन असी कमेटी बनाई जिसकी रिपोर्ट 2015 के आ चुकी सी। उहदे विच इन्होंने आ रिपोर्ट है शांता कुमार की, एंड ही हैज सेड क्लीयरली इहदे विच कि MSP हटा दिया, इसका बड़ा नुकसान है। FCI शुड नॉट बी देयर, जिहड़ा देश को बड़ा नुकसान है। फ्री ट्रेड कर दोगे ना जेदे ते सब कुछ लेके आए। नाउ आई वांट टू नो, मैं जानना चाहना है इस गवर्नमेंट तो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो, कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनया, संविधान बनया साडे हिंदुस्तान का। उस संविधान के अधीन कुछ सब्जेक्ट्स ने विच आर स्टेट सब्जेक्ट्स, सम आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट्स, और स्टेट सब्जेक्ट्स एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया इस मुल्क को, जिन्हें सारे कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स जैसे डॉक्टर अम्बेडकर जी ने चेयरमैन की उस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। और ये सारी जो फेडरल स्ट्रक्चर बनया कई सारे स्टेटा कई अधिकार से कि तुम अपने आप कानून बेस पर बनाओ।
एक करके दूजा करके तीजा करके खत्म कर दें। जीएसटी की गल देखो, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बैठे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी गई थी कि सारी टैक्सेशन विल बी डन बाय थ्रू द जीएसटी प्रोसेस, एंड वी गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दैट एवरी 3 months, हर 3 महीने बाद जो स्टेट्स को पैसे देने ने वो देते जाएंगे। कितने हो गए महीने? 7 महीने, 7 महीने। और कितना पैसा पंजाब को दियो? 9,500 करोड़ सानू दियो। वेयर आर द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी? तुसी पावर साथ तो लेना, फिर तुसी उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं करते। दिस इज वन, ये एक चीज है। लेकिन दूजा खेतीबाड़ी इज अ स्टेट सब्जेक्ट। इट कम्स हियर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ एंट्री 14 ਦੇ ਵਿੱਚ इट इज स्टेट सब्जेक्ट। तो एंट्री 14 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ इग्नोर करता, which is clearly agriculture, including agriculture, education, etc., etc., is done. और 28 मार्केटां ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। 33 means trade is agricultural trade। ट्रेड हो सकती है जी तुम खरीद और फरोख्त करते हो, तुम मंडियां मुंडियां के बाहर पासे जाके अपनी चीज़ों को खरीदते हो, बिकते हो। लेकिन ट्रेड तो नहीं कि जो कोई मेहनत करके खेती करके बीज बो के फिर हाड़ी जब फसल प्यादे हारवेस्ट करता है, वाढ़ी लाता है, वो ट्रेड है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिस तरीके ना सोचते हो, यू मेक इट आउट इन सच अ वे कि तुम कन्विंस अपने आप को तुम कर लो, पर दुनिया को कन्विंस नहीं कर सकते। हाउ कैन एग्रीकल्चर, अगर मैं हम आके उसे मटर बीजना है और मटर से मैं बीजना है एज ए किसान और मैं मटर फिर खरीदना है अपने बाग को मैं तोड़ना है एंड आई यूज इट, कुछ मैं शायद ज्यादा मटर हो मैं शायद डिप्टी स्पीकर साहब को भेजता या मैं अपने वास्ते कुछ रखना। That is an agricultural produce which I am selling, not trade. तो एक trade नो under section 33 how they have brought it, मैं कहीं नहीं समझाऊंगी, पहले explain करें। जब लोड सी के बहस करो पार्लियामेंट से बहस कराई, why didn't you बहस क्यों नहीं करो? बहस कराओ दे और 10 दे के एक section 33 दे अंदर आया। बट वो बहस उन्होंने पता सी कि बहस वास्ते they have no legs to stand on। ठीक है कि ओके लोकसभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਫਿਰ ਇਹ ਸਦਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਈ ਫਾਈਂਡ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ और कैसे चलना चाहती है और बीजेपी पार्टी की सोच। आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी एल्स, आई ब्लेम बीजेपी। लोग कहेंगे कि कहो कि जी फलाना उत्थे बैठा सी ऑर्डिनेंस ਦੇ ਵਿੱਚ बैठा सी या नहीं बैठा सी, वो these are minor things। I want to know कि तुसी जेड़े ये कानून बनाया कैसे बनाया, नंबर 1। सेकेंडली तुसी ये भी सोच रहे कि इस पंजाब की किसानी ने जदों PM फॉरेन लग्या सी उन्हें आई थिंक इट वाज 50 सम टाइम, जदों इथों असी बैगी बोलना झोली अड्ड के असी जाके कणक अपने लोगों वास्ते मंगते से चौल या कणक खाण वास्ते, उदों तुसी अमेरिका नाल PM फॉरेन की 10 मिलियन टन तुसी इंपोर्ट किया अपना फीड, ताकि इतने कोई काल ना आ जाए, लोग तो भुखे ना मरन लग जाए देश। फिर कौन क्या निका जा पंजाब 1.57% साड़ी धरती हिंदुस्तान, 2% तो घट साडे लोग, और उन्होंने उठ के पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने नवी कणक मंगाई, मैक्सीको तो आए कणक ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। फिर ਤੁਸੀਂ ਚੌਲ अपने फिलीपींस ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। और 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਅੰਨ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਅੰਨ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੀ, मर ठंड चौथे जदों बिल्कुल कोई बाहर जाके थोड़े पैर सुन हो जाते थे, उदों अपने काम किया और करके उन्होंने जाके हिंदुस्तान अपने अपने अन्न खवा के अपने देश को बचाया। भुल गए इस किस्म के कैलस एटीट्यूड है सरकार की
कि जो मेहनत होती थी साढ़े पंजाबियों ने सब तुम भुल गए। मैं अपने पंजाबियों ने सिर्फ हरियाणे वाले, यूपी वेस्ट वाले हुंका क्यों करती है इन्होंने? क्योंकि थोड़ा गंगा जमुना बेसन डिवेलप हो गया, उत्थे चौल की पैदावार हो गई, मध्य प्रदेश के कणक होने लग, कावरी बेसन, नर्मदा बेसन सारे डिवेलप हो गए, उत्थे चौल की पैदावार हो गई। तो चलो पंजाब को मारो, पंजाब को खत्म करो, पंजाब को। ये इंसाफ है? आई वुड लाइक द प्राइम मिनिस्टर टू टेल मी ये इंसाफ है? ये बड़ी अफसोस की गल है मैनू कि जदों तुसीं लोगों को वरते हो इत्थे पंजाब की तपी है जिहड़ी अज बॉर्डर पर बैठी है और लोगों को उत्थे साडे हिंदुस्तान की गल कर रही है। उत्थे कदे कोई गया है उत्थे सियाचिन दे विच ऑलमोस्ट 22,000 फुट ते और उत्थे साडे उत्थे जवान बैठे, सारी हिंदुस्तान की फौज पिंडों तो आती है और उन्होंने अज खेतीबाड़ी करते हैं। की सोच रहे हैं उत्थे कि साडा की उत्थे होगा, साडे कैसे कैसे जीएंगे, साडे मापे बैठे ने, साडे बच्चे बैठे ने, कैसे जीएंगे? ये की कर रही है गवर्नमेंट के विच? मैं रहा 16,000 फुट पे, पर उधर भी मैंने पता सी मुश्किल साह होता सी। 22,000 फुट के लोग बैठे ने। चीन का सारा बॉर्डर 2,000 किलोमीटर, सारा पीर पंजाबी जो पाकिस्तान के नाल लगता है। सियाचिन तुसीं नाम ले लो, जिथे रोज ही साढ़े कोई दिन ना जिथे साढ़े कोई जवान नहीं इतने शहीद होंगे, सब पिंडों तो आते ने, सारे खेतीबाड़ी के निर्भर ने। वो की सोच है, बोल नहीं सकते क्योंकि फौजी बोलता नहीं, दिल के विच तो सट वरती है ना कि मेरे परिवार के नाल की हो। सो तुसीं पंजाब दे इत्थे रोज हर दूजे दिन मेरा कोई पंजाबी इत्थे शहीद होंदा है उत्थे बॉर्डर ते। और ये 1.5% 57% लोग ने पंजाब जो 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 इत्थे देश को रक्षा करते, देश को आने देते और देश को बचाने ने जब संकट आते। तुसीं ये भी भुल जाते हो सारी गल्लां। ते मैं ये समझना चाहता जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आई एम वेरी अनईजी, आई एम वेरी अपसेट। देखो गल ये कोई नहीं चाहता अज मेरा देखो अज साडा एक तो कोविड का काल है, दूजे पासे साड़ी अज अखबार के पिछले अखबार कि इंडस्ट्री की रेवन्यू 40,000 करोड़ रुपये का घाटा पिया इंडस्ट्री में बिकॉज ऑफ कोविड एंड करंट जो फार्मर एजुकेशन है। फार्मर को एजुकेट करना पूरा अधिकार है, सानू सारे को एजुकेट करना पूरा अधिकार है, बिकॉज ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में एजुकेट करना ठीक है। असी किसानों नाल खड़े हैं। मैं उन किसानों को जरूर एक गल करांगा जो किसान यूनियन वगैरह ने, हूँ समय आ गया कि असी थोड़ा साडे नाल करो। देखो दो गल्लां हो सकदियां, इकोनॉमी नूं करना पंजाब नहीं बन सकता नहीं। अगर असीं समझते हैं कि सिर्फ आपां एक टोल प्लाजा रोक दो, रोक दो, कोई ये कुछ फर्क पैदा, ये कुछ फर्क नहीं पैदा। फर्क पैदा है देखो तुसीं कोई बिजली देख लो। अगर अज मेरे को नाभा पावर जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਕੋਲ मेरे सिर्फ एक दिन का स्टॉक है, कल को खत्म हो जानी है, उत्थे बिजली बंद हो जानी है। तलवंडी साबो साढ़े कोल 20-10 खत्म हो गया। GVK खत्म हो गया। सिर्फ लहरा रोपड़ ठारे कुछ बोला है, कितों खरीदा है पता नहीं किस गवर्नमेंट ऑफिसर ने अपने पावर बोर्ड को एक बयान दे दिता कि साढ़े को नैशनल ग्रिड तो कितों खरीदे, पैसा कितने है थोड़े को खरीदन, साढ़े को पैसा नहीं है। वी डोंट हैव मनी। जिस तरीके नाल इकोनॉमी चल रही है, जिस तरीके नाल इंडस्ट्री बंद पई है, कितों पैसा होगा अपने को? वी हैव टू, इफ वी हैव टू बाय, वी कांट बाय। आज कोला खरीद के रख ले, क्यों नहीं रखा? क्योंकि दे डोंट गेट जरा जिन्ना कोला सी कितने दिन तो चल रही है, बड़ा खत्म हो गया। 8-10-15 दिन का स्टॉक होता है, इसको ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो एक होता है प्लीज, मैं किसान अपने वीर बेनती करना, असं थोड़े नाल खड़े हैं, अकेले दम तक खड़ के पूरा मैनू पता
ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੱਕ ਜੁੜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਮੇਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੇਗੋਪ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 10% ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 10% ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟਾਕਸ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੋਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਝੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉੱਥੋਂ। तो ये सारिया चीज़ा हम देख रहे पंजाब की इकॉनमी का 40,000 करोड़ का सारा नुकसान हो गया इंडस्ट्री में। वी कैन नॉट अफोर्ड दिस, ये पहली गल है। और दूसरी गल मैं कहना चाहते मैं क्या सी पहला कि लोग कुछ कह रहे हैं कि तुम ये गल्लां क्यों करते हो, करनियां पैंदियां ने, पर मैं औखी घड़ी के पंजाब देखा, मैं देखा जो 35,000 पंजाबी इतने उन्हें घूम डुलिया सी पंजाब। मैं नहीं चाहता कि यह काम फेल हो गए। और साडा गुआढ़ी मुल्क कोई मौका नहीं छड्डदा जदों ताईं इत्थे आके कोई रौला नहीं पाउंदे। मैं जानदा आई होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ, मैनूं पता है कि कुछ हो हथियार आउंदे ने, कैसे आउंदे ने, किन्ने ड्रोन आउंदे ने, किन्ने आ चुके, किन्ने हथियार ने, किन्ने टेररिस्ट असीं फड़े ने, किन्ने असीं गैंगस्टर नूं जिहड़े टेररिस्टां नाल इन्वॉल्व थे उन्हां नूं असीं किन्ना फड़िया, सब कुछ देखिया। और ये जरा अगर इसका हल नहीं निकलता ये मूवमेंट बढ़ेगी करेगी नहीं। यही होया 1984 में, यही होया 90 में, कितने बंदे शहीद किए हैं। अब चाहते हैं कि आबहवा खराब हो सकता है, कौन होगा इंडस्ट्री लेके अज ये 3 साल के 7,000 करोड़ रुपया पंजाब की इन्वेस्टमेंट आया है, जो लोग लेके आए हैं। उन्हें कहते मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये आए वो धरती के उपर लग रहा है साडा इंडस्ट्री। देखो किन्ने ऐसे साड़ी इकोनॉमी की तरफ किस तरीके इंक्रीज करेगी, साड़ी देखो किन्ने नौकरियों के साधन बनेंगे, उन्होंने आपको सोचना पड़ेगा। स्पीकर साहब ये बहुत जरूरी है कि इस काम को आप रोके, पाकिस्तान नहीं हटेगा। और मैं तुमने होर दस देना कल चाइना और पाकिस्तान में कोलूजन है। चाइना और 20 बिलियन डॉलर आके उन जड़े पास से है जितों कानपुर माहिने आ रही है एक टनल सो में बढ़ाए और ट्रेन लेके जाएंगे अप टू द ग्वादर पोर्ट। उन्होंने इकोनॉमिक अटैचमेंट पाकिस्तान ऐनी होगी कि जब झगड़ा होगा दोनों मुल्क इकट्ठे होंगे। सरकार डू वी वांट दैट, डू वी वांट सासी बॉर्डर स्टेट है कितना आप ऐसे सकामेंगे अपना। अगर ये जी मूवमेंट जी आप कणक की गल कर रहे हैं, अपनी बिजाई की गल कर रहे हैं, माँ की मंडिया की गल कर रहे हैं, अगर लोगों को यह नहीं पता कि असी ये साडा कितना नुकसान होगा और फिर उस नौजवान उठना और इस मूवमेंट के हिस्सा बनना, फिर दसो पंजाब का रख के देश का कहना। तो ये जरूरी है कि नेशनल सिक्योरिटी को भी सेंटर की गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट और पंजाब को मेरे रोल है, एक बॉर्डर स्टेट है और एक सारी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आर्म्ड फोर्सेस साडी बहुत है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि असी इस गल को नेशनल सिक्योरिटी को सामने रखते हुए बहुत जेडे मेरे को फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं, दे आर नॉट स्मॉल फिगर्स, इन फैक्ट एंड फिगर्स को पता है। अगर एक ही प्रपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रपोज कर रही है कि एमएसपी का कॉस्ट अबॉलिश करो सब कुछ, फिर किसानों का जो सारे इकोनॉमिस्टा ने बड़ी फुर्ती अपना अपने आंकड़े कटे ने, हाल तक टाइम लगेगा तो फिर दसेंगे कि असी किसान 11,000 करोड़ रुपये का साडा नुकसान हो रहा है साडे पंजाब की किसानी वास्ते। और साडी मंडी बोर्ड है उन्होंने 4 को लेकर 5 लाख रुपये नुकसान है। और मंडी बोर्ड बगैर पिंडा की डिवेलपमेंट नहीं होनी, ना तो लिंक रोड बनने ना पिंडा की डिवेलपमेंट होगी, फिर कैसे चलेगा साडा पंजाब। तो इन्होंने कहता कि कोई मंडी बोर्ड होनी नहीं देवानी,
तीसरी गल फर्टिलाइजर, ਹੁਣ कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने क्या है कि फर्टिलाइजर ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ हर फसल वास्ते 2,500 रुपया दे, 2,500 रुपये ਨਾਲ पूरी फसल ਦੀ ਖਲ ਜਿੰਨਾ फर्टिलाइजर ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। और ਜਿਹੜੀ फर्टिलाइजर ਦੀ प्रेजेंटली पंजाब कंज्यूम्स 6.25 फर्टिलाइजर जो देश के ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ और ਉਹਦਾ सब्सिडी 5,000 करोड़ है। आउट ऑफ टोटल एनुअल फर्टिलाइजर सब्सिडी 80,000 करोड़, 80,000 करोड़ है पूरे देश की फर्टिलाइजर सब्सिडी और पंजाब की 5,000 करोड़। पंजाब की एंटाइटलमेंट ये हम उस हिसाब से कट के 800 करोड़ है, विच इज 4,000 crore loss to the Punjab farmer. It will increase the cost of cultivation by 4,000 rupees per acre. Now, ये हाले लोगों ने मन च आइया नहीं गल्लां पर आउणियां, पर ये साडा काम इस कदर दा है ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। तो ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਰ ਇਹ ਇੱਕ समय आ गया पंजाब में इकट्ठा होना पो और अपने किसानी नाल करना पाओ खड़े पता है ये हाउस आप कानून किया वी हैव टू फेस इट। सेंटर ने कुछ करिए ना करे तो गवर्नर साहब देंगे पर परमिशन पता नहीं देंगे या नहीं देंगे ना दे, फिर इन्हें जाना पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति जी देंगे या नहीं देंगे ये नहीं कहता समझ, लेकिन असी वी विल फाइट दिस। इस बैटल में असं जावे हर अदालत मैं आपके राही दसना चाहूँगा साहब मैं बहुत कुछ देखे अपनी जिंदगी के 52 साल हो गए जदों ब्लू स्टार होया उदों मैं इस्तीफा दिता पार्लियामेंट लोक सभा मैं समझना दो चीज़ा होंदियां ने जिहदे नाल आप हमारे किसी देश की बिगड़ सकती है, किसी सरकार की बिगड़ सकती है और देश की बिगड़ सकती है। एक धार्मिक टकराओ और एक अगर तुम किसी के पेट से तुम लत मारो, अज पेट से लपाई जा रही है। मैं उदों इस्तीफा दिता फिर बरनाला सरकार मैं सी एग्रीकल्चर देहाती विकास का वजीर उदों भी मैं इस्तीफा दिता जब उन्होंने बैठ खंडन किया। मैनू इस्तीफा देना कोई नहीं, मेरा इस्तीफा तो आप दिया जो मर्जी कर मैं अपने वास्ते मैनू कटना चाहते मैनू कट दे मैनू बदमाई मेरी सरकार आई हैव नो प्रॉब्लम अभी लोगों की कचहरी जावांगे अगर सब कर करते लेकिन बेइंसाफी जो हुई है सब किसानों का जिस तरीके वितरे इन्होंने किए ने जिस तरीके गरीबों का पेट से तुम लत मारे हो अमरिंदर सिंह के सामने सिर नहीं झुकाओ।